Good afternoon, participants. Welcome for the third session. On behalf of Ministry Youth Affairs and Sports, Khelo India, and behalf of LNCP, and behalf of our respected principal, Dr. G. Kishore sir, I welcome you all for this precious session. And we have a special speakers and a special guest. I like to introduce Sujit Panigrahi sir. About him, I would like to invite him as well as about him. Sujit Panigrahi sir is a CEO Fitness through 365, which runs a structured physical education and a sports coaching programs in more than 1,500 schools across India. Fitness 365 is managing the Khelo India fitness assessment programs for Sports Authority of India, Swasth Bachche Swasth Bharat program for KVS, and is also a part of a Fit India program. Sir is also a part of CBSE, then NCERT curriculum committee also, and sir is keenly involved in this online physical education teachers and community program for whole this program. He is keenly interested, and we are seeing him. He attends every program. Sir has a good energy also. I hope he will sleep only 4 hours a day. I hope that is. I feel that is also tough for him. We don't want more than that. But he is managing everything. So on behalf of Ministry, Youth Affairs and Sports, Khelo India, LNCP, and behalf of our respected principal, sir, I welcome you for this session, sir. And in this panel list, another important resource persons are there with us. Respected Neeraj Singh, madam, CBSE Sports Observer since 2006. Madam is there with her here to give her expert opinion on these topics. So, madam, about her, madam is a head of the department, JP Public School, Greater Noida. A national, madam is a national level player, table tennis as well as taekwondo, both a technical as well as a combative one. And madam is a master trainer at Khelo India Fitness Assessment. Madam, on behalf of Ministry Youth Affairs and Sports and Khelo India, and behalf of our college and our behalf of our respected principals, sir, I welcome you, madam, for this session. Thank you, sir. Thank you. And another resource person is there with us. He will join us within few minutes. About him, respected Himanshu Jaiswal. About him, sir is a teacher in schools, Kendriya Vidyalaya number 1, Chindwada MP, a regional level master trainer of SB KVS Jabalpur regions. Sir is also a national level monetary and a captain of KVS Jabalpur region staff cricket team also, specialized in team games. And sir has a good experience about 15 years in higher altitude trekking and mountaineering and various adventure sports. So these valuable people are there. So I welcome Jaiswal sir also for this session. So he's going to join within a few minutes. I'm eagerly waiting for your opinions. It was so wonderful. Last time also I heard the session was so good, so informative. I hope that this information will be shared with the participants, those who are there in this program also. I request all the participants to pay attention for this resource persons and get a greater valuable and dense knowledge with you after this session. I hope that one also. So all the best for the participants. Over to Sujit sir as well as other resource persons. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. So thank you, participants. So in the last, so today is the 22nd day
in terms of number of days that we have been on this program. So we have had 2 tracks. So this is the 3rd track that we're moving to. The first track was on physical education. So on physical education, so we spent about 12 days, 11 days in fact, where we actually talked about the need for physical education, what is physical fitness. We talked about a structured program. How do you integrate fitness in the existing curriculum, where Saroj Yadav ma'am spoke about it. Then we also had clear sessions on nursery to 5th, 6 to 8 and 9 to 12, the curriculum framework, and some suggested activities also that we looked at it. We also had session on planning those PE periods in the most effective way. We had session on creativity in PE and sports. And then we moved on to a different track, which was on community coaching. So where we talked about the need for community coaches, coach in action. We talked about ethics. We talked about decision making. We talked about a whole bunch of things. So we looked at structured PE program. We structured coaching program, and where we also talked about how do you spend 60 minutes in a day for a particular child for doing various kinds of activities. So all of that we have discussed. But like in any subject, like physical education is also a subject, but like in case of all subjects, whether it is mathematics, science, English, social studies, or any other subject, one very important aspect is assessment. किसी भी सब्जेक्ट का हमें टर्म 1 और टर्म 2 जब होता है, so we get a report card. जो क्लास टीचर होते हैं, क्लास टीचर हर बच्चे का, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हर साल होना चाहिए, तो बच्चे की एज और क्लास के हिसाब से देयर आर लर्निंग आउटकम्स. उस लर्निंग आउटकम के बेसिस पे बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो होता है, तो असेसमेंट के थ्रू होता है. मतलब कोई ना कोई टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स का होता है, इंग्लिश का होता है. तो हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा फिजिकल एजुकेशन कर रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन अगर अच्छा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आपका है, तो उसका डेफिनेटिव आउटकम जो है वो होगा बच्चे का फिटनेस में इंप्रूवमेंट. अगर एक स्कूल में अच्छा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है और अच्छे फिजिकल एक्टिविटीज करा रहे हैं, सही तरीके से करा रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चों का कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा. तो ये दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड पी प्रोग्राम. सेकेंड एस्पेक्ट जो है खेलो इंडिया नेशनल, तो ये एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. सेकेंड में कुछ एग्जांपल्स दूंगा अलग अलग एथलीट्स का. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे हिमा दास है. हिमा दास जो है वो असम की छोटी सी गांव ढिंग करके, ढिंग एक टाउन से, तो ढिंग से हिमा दास है, एंड शी इज वन ऑफ द 5 डॉटर्स ऑफ ए फार्मर. तो वो जो है बचपन में वो फुटबॉल खेलती थी विद बॉयज, लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी. तो उनका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जब वो 9 साल की थी, तो उनका पी टीचर ने देखा कि वो एक्चुअली बहुत अच्छा स्प्रिंटिंग करती, बहुत तेज भागती है, तो उनको फुटबॉल से स्प्रिंट में उन्होंने उसको मूव करा दिया. तो 18 साल की उम्र में शी वन एशियन गेम्स की मेडल. तो देखा से छोटी सी बच्ची को किसी पी टीचर ने उनको स्पॉट किया और फिर उनको राइट स्पोर्ट्स में डाला, और उनकी फिटनेस लेवल देखिए कितना बढ़िया, बहुत तेज भागती थी, तो उसके हिसाब से उनको वो बनाया, रनर बनाया. मल्लेश्वरी जी जो है वो भूसावनी पेटा करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में. शी वाज बोर्न देयर. तो उनका ये था कि वो भी उनके घर में 5 डॉटर्स है. 5 डॉटर में से वो भी एक ये थी. तो वो बहुत छोटी उम्र में जब खेलना स्टार्ट की थी, 12 साल की उम्र में उनको कोच अपन्ना है, उन्होंने उनको ट्रेन किया. और जब वो 15 साल की थी 1990 में, तब साई ने उनको स्पॉट किया. सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने जो टैलेंटेड एथलीट्स को स्पॉट करते हैं, तो शी वाज वन ऑफ देम. उनको स्पॉट किया था नेशनल कैंपर्स में. उसने नेशनल कैंपर्स में वो गई. फिर 18 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बनी. उसके बाद उन्होंने 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम्स और ब्रॉन्ज मेडल जो है 2000 सिडनी ओलंपिक्स में वो जीती. दूती चंद जो है उड़ीसा में एक छोटा सा गांव है, एक जगह है जाजपुर करके, बहुत बड़ा ये नहीं है, नॉट ए बिग टाउन. तो वहां पे लेकिन वो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन से, मतलब उसको खाने पीने का भी ये नहीं था. लेकिन क्या है कि उनके कोच ने उनको बहुत कम एज में उनको स्पॉट किया. फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में वो एशियन चैंपियनशिप जीती और एशियन गेम्स में 2 मेडल वो जीती है.
तो अगर इन सारे एग्जांपल्स को देखते हैं, ये तीनों एग्जांपल्स को देखते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इवन सचिन तेंदुलकर, उनके साथ भी अगर देखा जाए, सचिन जो है वो 16 साल की उम्र में इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो इंटरनेशनल डेब्यू किए थे 16 इयर्स में। अगर वो 16 साल के बदले 22 या 23 साल में डेब्यू करते तो 6-7 साल जो इनिशियल प्राइम एज है वो चले जाता, तो शायद उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इतना हाई नहीं होता, उससे काफी कम हो जाता, 6-7 साल जो एक्स्ट्रा वो खेल पाए। उनका जो कोच है आर्चेकर जी, वो अभी ही इज नो मोर विद अस, तो ही हैड स्पॉटेड हिम अलोंग विद सचिन्स एल्डर ब्रदर, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के ऊपर काफी जो इनिशियल इयर्स हैं उनको टैलेंट को स्पॉट करके राइट कोचिंग देके। तो अगर हम देखा जाए जितने लोगों की बात करें, सारे जो है हमारे लिए अर्जुनास है, और उनके जो पी टीचर्स है और स्पोर्ट्स कोचेस है उनके द्रोणाचार्य की तरह है। सो all of them, so to all of you who are here, जितना भी पी टीचर्स है, स्पोर्ट्स कोचेस है, all of you are like द्रोणाचार्यस for budding talent। तो आप सारे लोग जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिमिलर जो बाकी सब्जेक्ट टीचर्स है, रेस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट टीचर्स आल्सो, मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ाते हैं, तो हर तरह के जो टीचर्स हैं, सारे टीचर्स जो द्रोणाचार्य की तरह है। बच्चों को पता नहीं है वो किस में टैलेंट है, हम ये नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में खाली टैलेंट है, हो सकता है बच्चे का मैथ्स में टैलेंट है, किसी को सिंगिंग में टैलेंट है, आर्ट्स में टैलेंट है, किसी भी चीज में टैलेंट हो सकता है। जो क्लास 5 to 8 जो पीरियड है, वो जो पीरियड है 10 से 12 साल, 13 साल, 14 साल, जो भी बोले, 9 से 12, 13 साल भी सोचे, तो ये जो पीरियड है उसमें दैट इज अ पीरियड जहाँ पे बच्चे मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं बच्चों का। अब उनको जब हम मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ करते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई बच्चा कैसा कर रहा है, उसके हिसाब से हम उनको अलाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर बच्चे को एक्सपोजर दें, किसी भी चीज का हो, हर चीज का एक्सपोजर मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, पढ़ाई का हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर मिलना चाहिए। जब ये मैंडेटरी बन जाता है हर बच्चे के लिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये एक फ्रेमवर्क है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो 2018 है उससे पहले जो स्पोर्ट्स का मिनिस्ट्री अलग काम करती थी, एमएचआरडी अलग काम करती थी। एमएचआरडी स्कूल्स का काम करती थी और स्पोर्ट्स के लिए पहले बोलते थे कि जब तक आपको जुगाड़ ना हो तब तक आपको कुछ स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर सकते। लेकिन ये सब चीजें चेंज हो रहा है। ये जो चेंज हो रहा है वो ये है कि हम अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो एमएचआरडी के साथ मिलकर, सीबीएसई के साथ, सारे लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं, और सारे जितने स्टेट बोर्ड्स हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स अलाइन हो रहे हैं। मेरे 2 दिन पहले यूपी के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उनके साथ भी बात हुआ था। तो इस तरीके के और अलग अलग आईसीएसई भी उसमें बोर्ड आ रहा है, अलग अलग बोर्ड धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, 60 मिनट्स ऑफ प्ले को मैंडेटरी कर रहे हैं। हर बच्चा 60 मिनट खेले रोज, एक पी पीरियड होना चाहिए हर स्कूल में। इम्पोर्टेंट है, फिट इंडिया का मिशन का मतलब है कि वो एक पी पीरियड हो रोज, और पी पीरियड के साथ साथ तो 30-30 प्रिंसिपल्स बोलते हैं, आप 30 मिनट्स के आसपास पी पीरियड्स मिल जाएगा, और बाकी 30 मिनट्स वो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म का हो, फ्री प्ले हो या उसमें स्ट्रक्चर्ड प्ले हो, फ्री प्ले हो, सब्स्टिट्यूशन पीरियड हो, या तो रिसेस का टाइम हो, या तो आफ्टर स्कूल आवर्स हो, बच्चा 1 घंटा खेल पाए ऑन मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी करें, और कम से कम 3 दिन जो है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज करें, और 3 दिन जो है बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज करें। वो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज हो, कुड बी फन गेम्स, कुड बी फिटनेस ड्रिल्स, कुड बी स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स की प्रोग्राम हो, और इट कुड बी जस्ट सिंपल फ्री प्ले। ये सारे कॉम्बिनेशन से बच्चा अगर खेल पाए, तो हमारा क्या होगा कि हम अगर सारे स्कूल, हमारे पास 15 लाख स्कूल से इंडिया में, सीबीएसई के 22,000 स्कूल से, आईसीएसई 2500 स्कूल से, यूपी बोर्ड में मैंने उस दिन दिखा था कुछ लाख स्कूल से, मतलब यूपी में, मतलब खाली उत्तर प्रदेश ही है जिसमें, तो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 15 लाख स्कूल है, 30 करोड़ स्कूल गोइंग बच्चे हैं। अगर हमारा ये प्रोग्राम हम इसको एक्सपैंड कर देते, कहते हैं एक्सपैंड द बेस, हम जितने लोगों को, जितने स्कूल है सारे लोग जब अब खेलो इंडिया का पार्ट बन जाता है, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, और हर स्कूल अगर 60 मिनट्स से प्ले करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें ऊपर के टैलेंट के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही टैलेंट आ जाएगा। अगर सारे लोग खेलें तो हमारा नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे अपने आप ही बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ लीग्स बढ़ जाएंगे, सब कुछ होगा।
तो हम इसको 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं। पहला वाला है अपग्रेडिंग ऑफ पी टीचर्स एंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स कोचेस। एक पार्ट में साई एलएनसीबी ट्रिवेंड्रम काम कर रही है। अभी जैसे हम 1 महीने का ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज द फर्स्ट सीरीज। हम चाहते हैं कि इंडिया में हर पी टीचर और कम्युनिटी कोच को रेस्पेक्ट मिले, हर पी टीचर और कम्युनिटी कोच कंधे से कंधे मिला के बाकी टीचर्स के साथ काम करें और इतनी इंटेलिजेंट और ये इक्विप बन जाए टेक्निकली कि वो बाकी टीचर्स भी उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम करें। साइंस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इन साइंस, साइंस इन मैथमेटिक्स, तो हर चीज को हम जोड़ सकते हैं उसको, तो हम इसको ये करा पाए। तो एक साई एलएनसीबी ट्रिवेंड्रम जो पी टीचर एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम, वन पार्ट इज दैट। सेकेंड पार्ट ये कि हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन होता है या असेसमेंट होता है। हम ये चाहते हैं कि जो टर्म 1 और टर्म 2 का रिपोर्ट कार्ड जो क्लास टीचर बच्चे को दे, वो 2 रिपोर्ट कार्ड एक साथ दे, एक एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड भी दिए और साथ में एक फिटनेस की रिपोर्ट कार्ड दे, क्योंकि बच्चे को बैलेंस डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसका बाकी सब्जेक्ट जैसे एकेडमिकली वो अच्छा, वो फिटनेस लेवल भी अच्छा हो। कोई फायदा नहीं है कि बच्चे को 97% तो मिल गया एकेडमिक्स में, लेकिन वो ओबीज बच्चा है, अंडरवेट बच्चा है, एक थोड़ा सा भाग ही नहीं पा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। फिजिकल फिटनेस जो है लाइफ लॉन्ग रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे कोविड-19 के टाइम में इसका रिलेवेंस और भी बढ़ गया है फिजिकल फिटनेस का। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे हैं बैलेंस्ड हो, फिजिकली फिट हो और जो पी टीचर से फुली इक्विप्ड हो। अगर ये सब चीजें होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टैलेंट और हमारा जो टैलेंट पूल बढ़ जाएगा, हमारा पोडियम फिनिश भी बढ़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हर बच्चा जो है फिटनेस को अपना लाइफ टाइम गोल बना देगा कि मैं स्कूल के सिस्टम से बाहर भी जाऊं, कम से कम एक स्पोर्ट्स खेल पाऊं और हमेशा मैं बोल पाऊं कि आई वाज गुड इन बास्केटबॉल, इन स्कूल में ये खेलता था, वो खेलता था। अभी खेलना भी चाहता हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तभी भी खेलना चाहता हूँ। अभी हिमांशु जायसवाल जिनकी बात कर रहे हैं, जो अभी है नहीं, वो अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन है पूरे जबलपुर रीजन का, मतलब 55 स्कूल्स का मिला के, जिसको पूरे 55 स्कूल को मिला के उसका कैप्टन है। तो ये लाइफ लॉन्ग गोल्स है। तो ये मोटा मोटा है। अगर हमारा ब्रॉड बेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पोडियम फिनिश ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो ज्यादा पोडियम फिनिश होगा। So this is an opportunity for all school leaders and PE teachers. ये एक अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने कि हम सब जो है द्रोणाचार्य वाला रोल को प्ले करें और जो अर्जुना से उनको आइडेंटिफाई करें। पी टीचर्स हो या बाकी सब्जेक्ट टीचर्स हो, हम सबको नेक्स्ट चैंपियंस को ढूंढना है, वेदर इट इज विश्वनाथन आनंद, वेदर इट इज सचिन तेंदुलकर, दूती चंद, कर्नल राठौर, अभिनव बिंद्रा, मानू बाकर, कोई भी हो, कोई भी, सुशील कुमार, हमें गांव के कहीं ना कहीं पे हो सकता है। और ये सारी चीज पॉसिबल है अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करें। बिना टेक्नोलॉजी का छोटे से छोटे गांव में पहुंच के उसका जो डेटा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी को आना बड़ा मुश्किल है। हमें ये सो लेट अस ऑल प्ले आवर नेक्स्ट रोल। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च किया था। उसका पर्पस क्या है अभी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसी मुहिम को किस तरीके से लॉन्च किया, तो उसका पर्पस क्या है। यहाँ ढूंढो बाहर ढूंढो, घर में भी या बाहर ढूंढो, खेलते हो कि नहीं हो, अरे इंडिया के नए चैंपियन ढूंढो। फुटबॉल में, कबड्डी में, निक्कर में या चड्डी में, हॉकी में या टीटी में, रेस में या पीटी में, मम्मी भी और पापा भी, टीचर भी और मामा भी, अंकल आंटी बच्चा पार्टी ढूंढेंगे अब चैंपियंस भी। खेले कहाँ खेले, चाहे गुरु हो या चले, कितने फिट हो यहाँ देखो, रूल सारे यहाँ सीखो। कितना तेज दौड़ देखो, कितना दूर कूद देखो, खेलते होंगे कहीं वो, अरे चलो खेले चैंपियन ढूंढो। खेले भी हिले भी। खेलो इंडिया ऐप के साथ आप भी ढूंढ सकते हैं अगले चैंपियंस। तो कोई फोन न रह जाए जिसमें ये ऐप ना हो, ताकि कोई चैंपियंस ना रह जाए जो डिस्कवर ना हो। अरे चलो खेले चैंपियन ढूंढो। खेलो इंडिया ऐप, चलो चैंपियंस ढूंढे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये जो ऐप लॉन्च हुआ है फरवरी 2019 में, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि बच्चों को बहुत सारी चीजें कर पाए। बच्चों को 18 खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में बताना है। हमें बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी देना है और जो पेरेंट्स है और स्कूल से अपने फिटनेस असेसमेंट बच्चों का करा पाए, और ताकि स्पोर्ट्स अब जो डेटा आ जाएगा तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी उसमें से चैंपियंस को ढूंढ सकता है। तो ये मोटा मोटा ये है ऑब्जेक्टिव। इसके 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है।
फिजिकल फिटनेस असेसमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे, हर बच्चे का फिजिकल फिटनेस असेसमेंट होना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर बच्चे का फिजिकल फिटनेस असेसमेंट हो और कोई एक भी बच्चा नहीं छूट जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बच्चा किसमें अच्छा है। हो सकता है फिटनेस अच्छा हो सकता है उसका मैथ्स अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, फिजिक्स अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या पता है कि बच्चे का क्या फिट ये है। दूसरा क्या है कि हर बच्चा जो है वो ही हैज टू बी फिट। वो हमें स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं, हर बच्चा जो फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, हर बच्चे का होना जरूरी है। तो हम कहते हैं कि आपको जो भी फिजिकल फिटनेस का लेवल हो, अगले साल थोड़ा सा उस पर इम्प्रूवमेंट हो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इट शुड बी व्हाटएवर इज द लेवल ऑफ फिटनेस, गिव इट ए प्लस। तो ये जरूरी है कि हम अपना इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है तो मुझे बाकी दुनिया से क्या फर्क पड़ता है, बाकी दुनिया का क्या हो रहा है। मेरा खुद का अगर बेनिफिट हो रहा है, तो अगर मैं कहता हूँ कि पिछले साल मेरा 34 बेल्ट का साइज अब 33 हो गया, तो उसमें मुझे मुझे दूसरे का क्या हो रहा है, मैं क्या करना है उसमें। मोटा मोटा है कि मेरा खुद का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक बहुत जरूरी चीज है, दैट एवरी वी शुड बी एबल टू मेंटेन आवरसेल्व्स और बिकम बेटर फिजिकल फिटनेस। दूसरा एस्पेक्ट है जो साई के लिए इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट। जो पोटेंशियल टैलेंट है हम उसमें मॉनिटर करते हैं कौन कौन किस किस का पोटेंशियल टैलेंट है। जो अच्छे उनको बुलाएंगे, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल है, गांव में स्कूल से, शहर में स्कूल है, उनको पता नहीं होता कि क्या करें कैसे करें। बट जब इस सिस्टम का पार्ट बने तो अपने आप ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी को पता है कि किस कौन कौन बच्चे जो जिनका फिटनेस लेवल्स अच्छे हैं, उनको बुलाएंगे, उनके असेसमेंट करेंगे। अगर वो अच्छे हैं तो साई के स्पोर्ट्स हॉस्टल्स में एडमिशन मिलेगा, साई साई उनका वो करेगा। तो दोनों एस्पेक्ट है, हर बच्चे का फिजिकल फिटनेस और दूसरा स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट हर बच्चे का। ये जो है ये है खेलो इंडिया बैटरी ऑफ टेस्ट के जुलाई 2018 में एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, जिन्होंने 5 to 8 मतलब कि क्लास 1 to 3 के लिए बैटरी ऑफ टेस्ट बनाया था, बीएमआई, स्टैटिक बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और जो क्लास 4 से लेकर 12 तक मतलब जो 9 to 18 है उनके लिए 6 टेस्ट बनाया था। 5 to 18 के लिए वी आर लुकिंग एट स्टैटिक बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और बीएमआई। उसका पर्पस क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या सिखाते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि चलना, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, walking on a straight line. We teach them jumping, throwing, catching, फिर kicking, ये और standing on, walking on a beam, इस तरीके से चीजें सिखाते हैं जो लोकोमोटर स्किल्स हम कहलाते हैं उसको। तो ये जो स्किल्स हम सिखाते हैं उसमें मोटा मोटा क्या इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे का लोकोमोटर स्किल्स इंप्रूव होता है, और उसमें उसके साथ साथ मैनिपुलेटिव स्किल्स, बॉडी मैनेजमेंट स्किल होता है। उसका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हम चेक करते हैं कि बच्चे का बैलेंस कैसा है और उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है। दूसरा चीज हम चेक करते हैं 9 to 18 जो है 4 to 12 के लिए, उनका बीएमआई, स्पीड, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, उनका फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। ये कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट है, ये आप देख लीजिए। हम जब नेक्स्ट आगे जाएंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। 5 to 8 इयर्स का मतलब क्लास 1, 2 और 3, और 9 to 18 का मतलब क्लास 4 से लेकर 12 तक। और इसके 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक है असेसर इंटरफेस, दूसरा है स्कूल इंटरफेस, तीसरा है पेरेंट्स इंटरफेस और चौथा है साई इंटरफेस। असेसर इंटरफेस मतलब कि जो पी टीचर है, स्पोर्ट्स कोचेस है या प्राइमरी टीचर्स हो सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन कराते हैं, कोई भी हो सकता है उसके असेसर। वो कैसे असेसमेंट करेंगे ऑन द ग्राउंड, तो वो ऐप ये जो हम एप्लीकेशन दिखाएंगे आपको, वो उनके लिए बना हुआ है। कोई भी हो सकता है, पी टीचर, स्पोर्ट्स कोच या कोई पीआरटी हो सकता है, ये जो भी फिजिकल एजुकेशन, कोई भी जो आप पूरे स्कूल में आप ट्रेन भी करा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में हर टीचर को ट्रेन किया हुआ है ऑन यूजिंग द फिट केवीएन ऐप जो बना हुआ है। स्कूल इंटरफेस जो है, स्कूल इंटरफेस इज बेसिकली कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बच्चों का पहले अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर बच्चों का डेटा अपलोड करते हैं, फिर कुछ बच्चों को प्रमोट करते हैं, जिसको ट्रांसफर करते हैं। जब असेसमेंट हो जाएगा तो उसका रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं और बच्चे का प्रोग्रेस भी देखते हैं, पूरे स्कूल का प्रोग्रेस देख सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इसमें पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का एक ऐप है जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो उसमें पेरेंट्स कैसे हर अपने बच्चों का इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, उसका फिटनेस का डैशबोर्ड देख सकते हैं और फिटनेस का इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, गोल्स एंड रिकमेंडेशन देख सकते हैं, ये भी हम कल देखेंगे।
चौथा है साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो हमने 22 लाख का असेसमेंट हो चुका है। तो 22 लाख बच्चों में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके हर फिजिकल फिटनेस पैरामीटर्स में अच्छे हैं, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं ताकि हम उनके फर्दर असेसमेंट कर सकते हैं, उनको साई के डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में हम ये कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो ये 3 स्टेज प्रोग्राम है, फिटनेस असेसमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन। अगर आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो आप 2000 बच्चों को असेसमेंट कराइए, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को फील होना चाहिए कि वो इस पूरे प्रोग्राम का पार्ट है। फिर दूसरा है जो 1% बच्चे हैं उनके हम रीटेस्ट के लिए आपको भेजेंगे कि आप ये बच्चों को रीटेस्ट कराइए। अगर वो बच्चे अच्छे हैं फिर उनको साई के सेंटर में बुलाएंगे, फिर उनका एडिशनल 3-4 टेस्ट करेंगे जिसके बेसिस पे उनको जिसके बेसिस में वो चेक करेंगे कि सुटेबिलिटी। इस ऐप का जो मेन पोर्शन है ये पी टीचर और स्पोर्ट्स कोच या तो जो पीआरटी है जो भी असेसर है आपके स्कूल में वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इट्स कॉल्ड खेलो इंडिया, ब्रैकेट में स्कूल वर्जन इसका नाम। ये व्हाइट कलर का आइकन है, आप इसको ध्यान रखिए, जो पी टीचर्स है उनके लिए व्हाइट कलर का है, पेरेंट के लिए येलो कलर का है। आप दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। आज जो है, आज के दिन के बाद मैं ये चाहूंगा कि आप जिनके पास ऐप नहीं है आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इसमें। सिमिलरली स्कूल्स का भी आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि हम जब कल बात करेंगे तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कल हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा ये होगा कि आज जब हम घर जाएंगे तो घर पे ही है, सॉरी, जो मोस्टली घर पे ही है, तो हम इस चीज को करें कि हम स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन करें और असेसर के ऐप को डाउनलोड करें, उसको अपना रजिस्ट्रेशन को बनाएं। तो इस ऐप का खासियत है कि इसमें आप इसको ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। गांव में बड़ा यूजफुल है, छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जब भी आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको ऑन करेंगे तो स्कूल का स्टूडेंट का डाटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और जितना भी टेस्ट आपने लिया होगा ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा सर्वर पे। जब भी आपका व्हाट्सएप चलता है या कोई भी इंटरनेट साइट चलता है, जब आप इस ऐप को खोल के रखेंगे तो आपका स्कूल का डेटा ऑटोमेटिकली आपको पास डाउनलोड हो जाएगा और जितने असेसमेंट हो गए वो अपलोड हो जाएगा सर्वर पे। जब आप कनेक्टेड नहीं है तभी भी आप देख सकते हैं जो डेटा आपके पास पड़ा हुआ है मोबाइल पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने बैटरी ऑफ टेस्ट की बात कर ली है। और ये ऐप थोड़ी इंटेलिजेंट ऐप है, तो उसमें क्या है कि इसमें टाइमर वगैरह उसमें लगा हुआ है। तो फॉक्स 40 की विसल से जब हम स्टार्ट करते हैं, 50 मीटर हो या 600 मीटर का हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जब ये जो स्टार्ट देते हैं वो अपना फॉक्स 40 विसल से जब स्टार्ट देंगे, सो एंडिंग लाइन में 50 मीटर के जो एंडिंग लाइन है उसमें जो भी स्कोरर है जब वो लाइन में खड़े होंगे तो उनकी मोबाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा फॉक्स 40 विसल से, ताकि ये टाइमर जो है विसल को सुन के ही करते हैं, बाकी आप सीटी मारे कुछ करे तो स्टार्ट नहीं होगा, ओनली फॉक्स 40 की विसल से वो चलते हैं। उसमें लेन नंबर्स बने हुए हैं, कितने लेन का करना है, मल्टीपल लेन का, ना तो आपको स्टॉप वॉच चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, आप सिंपल इस मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली जो है इसमें बच्चों का आईडी कार्ड बना हुआ है, क्यूआर कोडेड आईडी कार्ड है। क्यूआर कोडेड आईडी कार्ड का मतलब ये आधार कार्ड और पैन कार्ड की तरह है। इस कार्ड जो है, आप अगर बच्चा 12 साल के लिए आपके स्कूल में एक ही कार्ड को एक बार प्रिंट करके रखिए, लैमिनेट करके रखिए और 12 साल तक उसको यूज कर सकता है बच्चे। वही क्यूआर कोड रहेगा क्योंकि उसको बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा, तो क्यूआर कोड भी नहीं चेंज होता है बच्चे का, तो ये चीज कर सकते हैं। कार्ड खो गया तो ऊपर क्लास और स्टूडेंट के हिसाब सर्च कर सकते हैं, लेकिन कार्ड अगर है तो उसका स्कैनिंग होते ही सारे डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जैसे मैंने बताया व्हाइट कलर आइकन है। तो ये तो अभी जो है नीरज मैम जो है वो बताएंगे आपको कि स्कूल के रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, असेसर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बच्चों का डेटा कैसे अपलोड करना है, आईडी कार्ड कैसे जनरेट करना है, और उसके बाद जो है देन मैं और हिमांशु सर आपको बताएंगे कि टेस्ट को कैसे कंडक्ट करना है। तो ओवर टू नीरज मैम एंड शी कैन देन स्टार्ट द। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Hope I'm audible. My screen is visible. Absolutely audible. Screen is visible, sir. Yes, yes. Yeah. So as the sir have explained you all that what is Khelo India Assessment Program. अब इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे, कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। एज सर ने पहले ही बताया, इट इज अ मर्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड आईटी।
न्यू एज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें अपने स्कूल को इनरोल कराना है, अपने स्कूल को रजिस्टर्ड कराना है खेलो इंडिया के लिए। तो हाउ टू गो अबाउट दिस, हमें अपने स्कूल को हम कैसे कराएंगे? सबसे पहले गो टू द क्रोम, आप क्रोम पे जाइए, आप schoolfitness.keloindia.gov.in टाइप करेंगे। जैसे आप वो टाइप करेंगे, ये जो फर्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं, खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स, ये ब्लैक जिसमें 2 बच्चे खेल रहे हैं, दिस इंटरफेस विल कम and we have to register our school here, we have to sign up here। हमें अपने स्कूल को रजिस्टर करने के लिए, हमें अपने स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड लेने के लिए इस पोर्टल साइट पर जाना होगा, और साइट पर जाने के बाद हमें अपने स्कूल को साइन अप कराना है। हाउ टू साइन अप, दिस वी विल सी इन दिस वीडियो। Simultaneously, I will be also keep explaining you। To sign up on Khelo India National Fitness Program for schools, go to school. The moment you type in the Chrome schoolfitness.keloindia.gov.in, ये एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये वाला जब इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ये ऑरेंज कलर का बटन आप देख रहे हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑरेंज बटन एंड स्टार्ट प्रोसीडिंग फॉर द साइन अप। Fitness.keloindia.gov.in. Click on this sign up button. This new school self registration page will open. Certain school details will be required. Select board or school chain. After that, select your board. Enter your school UDICE code. Okay. The moment you click on the sign up button, this interface will come up. New school self registration means school अपने आप को खुद इसमें साइट पर जाकर के रजिस्टर्ड कराएगा, और आपको यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं, these all are the school official details, so keep all these details handy with you। जब आप अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं, आप साइन अप करना शुरू कर रहे हैं, आपके पास आपके स्कूल की सारी ऑफिशियल डिटेल्स होनी चाहिए। UDICE नंबर, zone, region, state, city, shift, school official email address, school website, school mobile number, all the official details of a school should be with you handy। So आपको वही डिटेल्स इसमें डालनी है, क्योंकि स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप। Select zone. Select region. Select state. Select city. Enter your complete school name. Select shift, morning or evening. Enter your school official mail ID. One OTP is sent. When you are typing the email ID, जब आप email address और mobile number जो लिख रहे हैं स्कूल का official, keep that accessible to you। वो आपके पास accessible होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि the moment you will type school email address और mobile number, आपके पास एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। तो जैसे जब वो ईमेल आपके पास आएगा, OTP आएगा, वो आपको इस ईमेल एड्रेस पर आएगा और मोबाइल नंबर, तो दोनों OTPs आपको वेरीफाई करने होंगे। तो कीप योर ऑफिशियल email मोबाइल नंबर एंड ऑफिशियल email ID both handy and accessible to you। Sent on this mail ID. Enter that OTP. Verify. OTP verified successfully. Click on this close button. Enter your school mobile number. OTP has been sent on your mobile number. Please enter that OTP. Click on verify button. Close. Enter your complete school address.
Enter school website address. In school description, enter approx strength of your school. To sign up, check the entries that you have made. After the school email ID, school address और स्कूल का वेबसाइट डालने के बाद एडमिन डिटेल, आपके स्कूल के हेड की पर्सनल डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर डालना है आपको। और उसके बाद जस्ट रिव्यू ऑल द डिटेल्स। आप अपनी सारी डिटेल्स को एक बार रिव्यू कीजिए कि आपने टाइपिंग सही किया है, डिटेल्स का टेक्निकली करेक्ट है, देन यू सबमिट। Click on submit button. One message has come, school added successfully. The moment you will submit, immediately one message will pop up, school added successfully. उसी वक्त आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका स्कूल खेलो इंडिया से अटैच हो चुका है। Now you have received one mail on your school official mail ID. This is the mail. This is welcome mail for school principal or HM. This mail is of school activation on Khelo India School. The moment you register your school, you will receive a formal confirmation mail. आपके साइन अप करते ही आपके पास एक फॉर्मल कंफर्मेशन मेल आएगा, वो उसी ईमेल एड्रेस पर आएगा जो आपने साइन अप के वक्त अपना ऑफिशियल ईमेल डाला था। उस पर आपको एक मेल आएगा कि आपका स्कूल अटैच हो चुका है, सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, और आपके अकाउंट का डिटेल्स ही है, आपका यूजर नेम ये है, आपका पासवर्ड है, एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दिस प्रोग्राम, how your assessor can assess the children, how you can start the assessment in your school. Complete, it's a kind of a startup kit जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। फर्स्ट स्टेप, you have to log into the schoolfitness.khiloindia.gov.in. second step, you have to log in with the principal credentials. Third step, you have to upload the data. Then you have to attach your teacher, your assessor with the school portal. Fifth, you have to start taking assessments. And how to take the assessments, complete video, manual, all the links are given in this mail. This is a very important mail. इस मेल को अगर आप complete इसके links को आप study करेंगे तो complete program is handy to you. School portal. These are account details for Khelo India School portal. To get started, you have to follow these steps. First of all, click on this schoolfitness.khiloindia.gov.in. This Khelo India portal gets open. Click on this login button. Enter the user ID and password which you have received. अभी तक हमने साइन अप किया था। अब साइन अप करने के बाद जब हम फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं, जब हम लॉग इन करेंगे तो ऑरेंज लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे और जो कंफर्मेशन मेल में आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आएगा, the username and password which you have received in the confirmation mail that you are successfully added to this program, वो मेल, वो username and password आपको टाइप करना है यहाँ पर। Enter CAPTCHA here. Click on sign in button. This is home page of Khelo India portal. This is first time when you will log in. This is how the interface will come. Here will be the welcome with your school principal name or HM name which you have typed. That will reflect here. अभी जो आपको student statistics दिख रही है यहाँ पर 0 student uploaded and assessor are the 0 because अभी हमने दोनों को ही अपलोड नहीं किया। हमने स्टूडेंट डेटा अपलोड नहीं किया है, हमने अभी तक एसएसआर को असाइन नहीं किया। हमने अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, स्कूल को रजिस्टर कैसे करना है। हमने स्कूल को रजिस्टर करना है, हमने schoolfitness.khiloindia.gov.in में जाना है, वहां जाके हमने साइन अप करना है। साइन अप में हमने स्कूल की ऑफिशियल डिटेल सबमिट करनी है
आपका जो कंफर्मेशन मेल आएगा उस मेल में आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, उस डिटेल्स के साथ नाउ यू आर रेडी टू लॉग इन विद योर स्कूल. School fitness app statistics. Till now, students' data has not been uploaded. Neither the assessors are approved. So this is how you sign up on Khelo India portal. Thank you. This I've already previously also I've explained. You will be receiving a confirmation mail, but one more time I'm explaining you because this mail is very, very important. This is a key mail which has all the solutions. आपको how to get started, all 5-step program is written कि आपको इन 5 steps को follow करना है. इन 5 steps को आप follow करेंगे और आप जो है assessments के लिए तैयार हैं. उसके बाद आपको assessment करना क्या है, कैसे कराना है, उसकी पूरी डिटेल, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, उन इक्विपमेंट्स का साइज क्या होना है, उन इक्विपमेंट और उस टेस्ट को कंडक्ट करने के प्रोटोकॉल्स क्या है, टूल्स क्या है, टेस्टर की क्या की नॉलेज होनी चाहिए, विद वीडियो आपको हर चीज यहाँ पर लिंक के साथ दी गई है. तो दिस कंफर्मेशन मेल इज hereby very, very important. Once we have now you all know how to register your school. हमने school registered कर लिया है, लेकिन if by chance when you miss the details or password of your school, आपको recover कैसे करना है अपने account को. ये बहुत common problem है जो आती है, जिसकी वजह से हम specially आपको बता रहे हैं कि when you forget your password or you lost on your account, आपको सिर्फ रिकवर योर अकाउंट में जाकर के अपना स्कूल कोड, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये चारों चीजें जो आपने साइन अप के वक्त टाइप की थी, जो साइन अप पे आपने सबमिट की थी, द सेम डिटेल, एनी वन ऑफ दैट डिटेल, उन चारों में से कोई भी एक डिटेल आपको यहाँ सबमिट करनी है, कैप्चा टाइप करना है एंड देन एंटर ऑन इट. आपको एक ओटीपी आएगा आपके मेल पर, आपके मोबाइल पर, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है और आपको आपका अकाउंट रिकवर हो गया. यू विल गेट अ न्यू यूजर, न्यू पासवर्ड. सो यू आर एबल टू डू इट. नाउ द सेकंड, आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है. अब स्कूल के बाद सेकंड काउंटर पार्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट काउंटर पार्ट है एसेसर. जिस टीचर को असेसमेंट्स लेने हैं उसको उस मोबाइल, हम कैसे इसको रजिस्टर्ड करें और कैसे इस स्कूल से असाइन करें. तो फर्स्ट, हाउ टू रजिस्टर कैसे होना है. दिस इज एप्लीकेशन एज वी हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, सर ने आपको एड्रेस किया. दिस इज अ स्मार्ट ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है. इंस्टॉल करिए उसको और उसमें आप देखेंगे, जब आप जाएंगे खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप टाइप करेंगे, वहां पर आपको 2 एप्लीकेशन दिखाई देंगी. एक होगी स्कूल, तो खेलो इंडिया स्कूल वर्जन जिसका इंटरफेस व्हाइट है, और दूसरा है येलो कलर का जिसका जो कि पेरेंट्स के लिए है. ठीक है. एसेंशियली एज ए असेसर, एज ए पी टीचर, आई एम यूजिंग खेलो इंडिया स्कूल वर्जन व्हाइट इंटरफेस एप्लीकेशन. तो हमें उसमें साइन अप करना है. तो जस्ट सी हाउ टू साइन अप ऑन दैट. आपने डाउनलोड किया, आपने इंस्टॉल किया, नाउ इट्स टर्न टू साइन अप. This is Khelo India application. Please click on Start Fitness Assessment. Click on Sign Up button. Please enter your name. When you are signing up for the application, make sure you are filling all your personal details. आप जब इसको साइन अप कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, क्योंकि ये आपका ट्रेनर आईडी जनरेट करेगा जो कि आप स्कूल से अटैच कराएंगे. You can attach it with 2 schools, or even when you will switch over also, na? So this will remain with you. This training ID will remain with you whenever you will change to another school. So fill all your personal details in this. Your mobile number, your email address, everything should be your personal, which you access. जो आप access करते हैं, वो personal details आपको इसमें fill करनी है. School registration में हमने school की official details करनी है. एप्लीकेशन में हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स साइन अप करनी है. Enter your correct email address. It should be your personal email address.
Please enter your phone number. Enter your school address. It is optional. Please enter your state. Mine is Your school address is optional here because यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, और हो सकता है आप 2 स्कूल्स में भी काम करते हो, और हो सकता है आप स्विच करें स्कूल, तो इसलिए स्कूल डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि हो सकता है आप 3 साल 4 साल के बाद स्विच करें, दूसरे स्कूल में जाएं, तो ये इसमें आपको इसलिए ऑफिशियल ये पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, ऑफिशियल डिटेल्स नहीं मांग रहा है, बस आप अपना ट्रेनर आईडी के साथ अटैच कर पाएंगे। is Delhi East. Enter your district. Enter your city name. Enter your block. Enter your qualification. Gender. Have you attended any TOT? Please select this if you are attending any TOT, and if you are not attending. This next column is have you attended any TOT? अगर आपने कोई भी ऑफलाइन TOT जिसमें हमने TOT कोड जनरेट हुआ करता है, अगर आपने कोई TOT अटेंड किया, उस TOT का आप TOT व्हाट इज TOT? टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, राइट? उसका कोड आप डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। Leave this blank and move further for the next column. Ending, please leave it. Take the remaining 2 boxes and click on sign up button. So this is the moment you have clicked on the submit और आपका साइन अप हो गया, आपके पास एक इस तरह का मैसेज पॉपअप होगा, registration status, registration successfully and your trainer ID successful and your trainer ID is so and so। आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपका ट्रेनर आईडी ये है। The moment this message comes, please take the screenshot। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी ट्रेनर आईडी से आप अपने स्कूल के साथ अटैच होंगे, right? तो take a screenshot of this your trainer ID. trainer ID. You have to take screenshot of it, and when we will go to manage assessor on Principal HM portal, it will be required. Thank you. The same as at the time of school registration, you got on a confirmation mail। जैसे आपने स्कूल रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको एक कंफर्मेशन मेल आया था आपके स्कूल के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर, सेम मैनर आपके पर्सनल एड्रेस पर स्कूल एप्लीकेशन को साइन अप करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने एप्लीकेशन साइन अप के वक्त डाला था उसमें आपके पर्सनल मेल पर, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि हाउ टू लॉग इन एंड हाउ टू गेट दिस पास, और आपका अपना यूजर नेम, एप्लीकेशन का यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, एंड हाउ टू अटैच योर साइन योर एप्लीकेशन विद द स्कूल पोर्टल। उसकी डिटेल्स होंगी, आपकी TOT के डिटेल्स होंगे, मींस आपके पास सारे वीडियोस होंगे, आपके मैनुअल्स, ये तीनों लिंक्स आपको इसमें दिए जाएंगे, सो दैट इट विल enrich you with the knowledge how to take up this program, this mail। आपका एसेसर साइन अप हो गया, आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है, आपने देखा कि आपके स्कूल में जब हमने स्कूल का डैशबोर्ड देखा था, इट वाज शोइंग 0, राइट, कि उसमें स्टूडेंट डेटा दिखा रहा था 0। अब क्योंकि हमारा एसेसर रेडी है, हमारा स्कूल रजिस्टर्ड हो चुका है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल थिंग, एज ए स्टूडेंट हमें अपने स्टूडेंट्स का डेटा इस पोर्टल पर अपलोड करना है, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को का रजिस्ट्रेशन के बाद, उनके टेस्ट के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल डैशबोर्ड पे देख सकती हैं, टीचर एप्लीकेशन के थ्रू उनका असेसमेंट्स लेगा, वो सारा डेटा, वो सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन डिटेल्स हमें अपलोड करनी है। अब कैसे उसे हमें डैशबोर्ड पर अपलोड करना है स्कूल प्रिंसिपल पोर्टल पर, दिस वी विल सी इन दिस वीडियो।
So now as you have received user ID and password for your principal HM, so first of all what you have to do now is you will go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. After that you will click on login button. Enter the user ID and password here which you have received. आप स्कूल पोर्टल पर गए, आप schoolfitness.kheloindia.gov.in पर गए, आपने वहां लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आया जो साइन इन के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो हमें वही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो कि एट द टाइम ऑफ प्रिंसिपल कंफर्मेशन आया है। जो आपको प्रिंसिपल कंफर्मेशन मेल आया है वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है इसमें। Enter CAPTCHA. Click on this sign in button. So this is the page of your school for Khelo India and these are school. साइन इन करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हुआ है जहां पर अब हम अपना डेटा अपलोडिंग शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ये आपका अभी स्टूडेंट डेटा आपके पास अभी 0 दिखा रहा है। Fitness app statistics. Here you can see till now no student has been uploaded. So to upload students data, we have to go on student. We will click on student data upload. Now by default my school. आप सेकंड टैब पर गए स्टूडेंट में आपने स्टूडेंट डेटा अपलोड पर क्लिक किया और स्टूडेंट डेटा अपलोड पर क्लिक करने के बाद पहले आपने स्टूडेंट पे क्लिक किया, फिर स्टूडेंट डेटा अपलोड पर क्लिक किया। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हुआ है। ये इंटरफेस खुल करके आया है जिसमें आपको अपना स्कूल क्लिक करना है। School name is already there. I have to select profile. I will select it as personal profile. Now you. जब आप सेलेक्ट प्रोफाइल में जाएंगे आपके पास एक पर्सनल प्रोफाइल आएगा और आपको उसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली यू कम डाउन टू दीज 3 टैब्स। यू कैन सी दीज 3 टैब्स। आप इन 3 टैब्स को देख सकते हैं। डार्क ऑरेंज कलर के जो 3 टैब्स हैं, जो फर्स्ट टैब है हमारा डाउनलोड टेम्पलेट, सेकंड टैब है हमारा सैंपल डेटा एंड थर्ड टैब है हमारा अपलोड। ठीक है, सब व्हाट इज डाउनलोड टेम्पलेट? हमें जो डेटा अपलोड करना है, हम जिस डेटा को अपलोड कर रहे हैं वो डेटा हमारा एक एक्सेल फाइल में है और आपको वो एक्सेल फाइल बनानी नहीं है। आपको एक रेडीमेड ब्लैंक एक्सेल फाइल दी जा रही है जिसमें आपको अपने स्कूल का डेटा कॉपी पेस्ट करना है। और वो करना किस फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट के लिए आपको इस सेकंड टैब में जो सैंपल डेटा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सैंपल डेटा आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास सैंपल है। आप देखेंगे अभी कि किस तरह से डेटा दिया हुआ है और सेम फॉर्मेट में आपको डेटा डाउनलोड टेम्पलेट में कॉपी पेस्ट करना है और उस फाइल को आपको विद द नेम ऑफ पर्सनल प्रोफाइल, डोंट रीनेम द फाइल विद एनी योर स्कूल नेम और पर्सनल प्रोफाइल 1 और पर्सनल प्रोफाइल 2, डोंट रीनेम द प्रोफाइल। उस फाइल को हमें पर्सनल फाइल के नाम से ही रखना है, उसको वो वैसे ही सर्वर एक्सेस करता है और उसमें हमें दोनों P कैपिटल रखने हैं। मेक श्योर दैट बोथ द P's आर कैपिटल। You can see 3 orange colored buttons have come up. So first of all click on this download template. One Excel sheet named personal profile will get downloaded. Open this file. So in the first row you can see there are 2 colors. First one is orange. आपके पास जब डाउनलोड टेम्पलेट के बाद जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है आपके पास जो आई है, आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, उसमें एक हेडर दिया हुआ है A to K, जिसमें A to H तक डार्क ऑरेंज कलर में जो हेडिंग्स हैं, जो टाइटल्स हैं, वो मैंडेटरी हैं। वो एंट्रीज फिल करना मैंडेटरी। हर बच्चे का स्कूल कोड, एडमिशन नंबर, नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, DOB इन द गिवन फॉर्मेट करना मैंडेटरी है। उसके आगे जो हमारे पास येलो कलर का टैब लाइन है जिसमें हमारा डोमिसाइल, होम टाउन, फेवरेट, स्पोर्ट्स, हॉबीज, इस तरह की एंट्रीज हैं,
these are not mandatory. ये mandatory नहीं है, या आप इन्हें blank छोड़ भी सकते हैं और अपनी convenience के हिसाब से आप कर भी सकते हैं. लेकिन ये जो डार्क ऑरेंज में स्कूल कोड से लेकर के डीओबी तक है, ये मैंडेटरी है और गिवन फॉर्मेट में करना मैंडेटरी है. आप इसमें करेक्शन नहीं करना है आपने. And the second one is yellow. The fields in the orange color are mandatory for you, and the fields in yellow are not mandatory for you. So you are required to fill up all the fields that are in orange color. In the first column, you have to enter school code. In the second column, you will enter student admission number. In the third column, name of the student. After that, gender, class. When you are filling these entries, make sure to keep the format same. जब आप इन एंट्रीज को भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि उसकी एंट्रीज की डिटेल्स गिवन फॉर्मेट में होनी चाहिए. जेंडर आपने लिखना है तो मेल फीमेल में लिखना है. ऐसे नहीं कि 1 2 3 गर्ल्स बॉयज, 4th ऑनवर्ड मेल फीमेल. नो, कीप इट ऑन सेम फॉर्मेट. आपको क्लास दी गई है, आपने रोमन में लिखी है तो रोमन तक आप रोमन में ही आपने क्लास 12 तक लिखना है. सेक्शन आपने ABCD फॉर्मेट में लिखे हैं, आपको 12 तक ABCD फॉर्मेट में ही लिखना है. ऐसा नहीं है क्लास 1 2 का आपने जैसे फ्लावर्स के और प्लैनेट्स के नेम्स होते हैं, मून, सन, रोज एंड पेटल, ये सब नहीं करना है. आप उसको देन रीनेम द सेक्शन एज पर द ABCD. सेम फॉर्मेट क्लास 1 to 12 होना चाहिए. डीओबी जो आपको दी गई है DDMMYY फॉर्मेट में दी गई है, कीप इट इन अ DDMMYY फॉर्मेट. उसको आपने ऐसा नहीं कि यहाँ पे DDMMYY क्या, थोड़ी नेक्स्ट क्लास के डिटेल है आपके पास मई जून के हिसाब से, तो आपने उसको अल्फाबेटिक में मई जून लिख दिया. नो, कीप इट अ सेम फॉर्मेट एंड द गिवन फॉर्मेट जो आपको सैंपल डेटा में दिया गया, आपको उसी फॉर्मेट में कंटिन्यू करना है. Class, section, roll number, and date of birth. Save the data. Now click on this choose file button. आपने उस टेम्पलेट पर डाउनलोड टेम्पलेट पर जो ब्लैंक फाइल आई थी, आपने अपने स्कूल का डेटा उस पर कॉपी पेस्ट किया, उसको रेडी किया. उसके बाद आप फिर वापस चूज फाइल में जाएंगे. Now you will go to choose file and you will click on the choose file and there you will submit. Select personal profile in which we have uploaded students' data. Click on open. After that, click on this upload button. Now we have successful. चूज फाइल में जब आपने पर्सनल प्रोफाइल चूज करना है, उसको रीनेम में पहले भी बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बता रही हूँ, उसको रीनेम नहीं करना है. चूज फाइल में जब आपने अपने लोकेशन से उस फाइल को पिकअप करके यहाँ पे लाए और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया, द मोमेंट यू विल अपलोड इट, आपको इन तीनों टैब के नीचे एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर अपलोडिंग द डेटा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड. कि आपका डेटा अपलोड हो चुका है और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है. बट इन केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको आए कि एरर, ठीक है, उसके लिए हम आपको दिखाएंगे. जब आपकी फाइल में एरर आएगा और आपका डेटा अपलोड नहीं हुआ तो हाउ टू रिजॉल्व दिस एरर फाइल, ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट फाइल में. लेकिन यहाँ पर आपको ये मैसेज आएगा, सिंपल मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर अपलोडिंग द डेटा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, मींस योर डेटा इज अपलोडेड. और यहाँ पर रेड में अगर आपके पास मैसेज आएगा दैट एरर फाइल, मींस फिर हमें उससे एरर रेक्टिफिकेशन करना होगा. अभी हमारा इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली. Fully uploaded the students' data. One message has come up. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how we upload the students' data. Click on home button. Now you can see the student. आपके पास जब मैसेज आ गया डेटा हैज बीन अपडेटेड, फाइन, उसके बाद आप होम बटन पे जाके चेक करिए कि मैंने 1200 बच्चे अपलोड किए थे. वो यहाँ पे स्कूल फिटनेस ऐप स्टैटिस्टिक्स में दिखाएगा आपको. अभी यहाँ पे जो ये 9 नंबर दिख रहा है क्योंकि हमने एज अ सैंपल जस्ट टू गिव यू अ फील हमने 9 स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड किया. लेकिन आप जब एक्चुअल में करेंगे तो आप अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट कैन बी 500 or 1000, और वही नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा कि 1000 so नंबर स्टूडेंट अपलोडेड. कितने नंबर के स्टूडेंट अपलोडेड हो चुके हैं आपके पास. Students which we have uploaded can also be seen on this home page. This is how we upload the students' data. Thank you.
essential things are done. रजिस्ट्रेशन हो गया, SSR साइन अप हो गया है, स्टूडेंट डेटा अपलोड हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि बाय चांस हमारी फाइल में कोई मिस्टेक हो गई या हम कोई स्टूडेंट डेटा अपलोड नहीं हुआ, what we will do in that condition, how to resolve this error in the file, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. If some errors come in upload, first 2 minutes the same process. ठीक है, आपको साइन अप कैसे आपने लॉगिन कैसे करना है, उसके बाद साइन इन कैसे करना है, फिर हम डेटा अपलोड पर जाएंगे. उसके बाद जब हमारी फाइल अपलोड होगी तब उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो फाइल हमारी अपलोड हुई या नहीं हुई. अगर नहीं हुई तो एरर आया, तो एरर क्या आया और उस एरर को हमने रिजॉल्व कैसे करना है. uploading students data, let's see how to rectify them. First of all, go to schoolfitness.kheloindia.gov.in. Click on this login button. Enter user ID and password. Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Select student. Student data upload. Select profile. Click on download template. Till that here we are clear. Login, sign in, उसके बाद ये इंटरफेस ओपन आया, उसमें हमने स्टूडेंट डेटा अपलोड पर क्लिक किया. उसके बाद इन 3 ऑरेंज बटन जिसमें डाउनलोड टेम्पलेट को डाउनलोड किया, उसमें हमने अपना डेटा एज पर सैंपल डेटा हमने अपने डेटा को कॉपी पेस्ट किया. Open this personal profile sheet. So this is the Excel sheet where you have to upload the students data. Here you will enter school code. This is the school code which you have to enter. Here you will enter student admission number, name of the student, enter gender here. You can enter gender in the form of male, female, boy, girl, M, F, B or G. But keep it same for 1 to 12. आप अगर B, G कर रहे हैं, आप M, F कर रहे हैं, आप मेल, फीमेल कर रहे हैं, बॉयज, गर्ल्स कर रहे हैं, keep same for all. 1 to 12 सबको एक सा रखना है. फिर आपने ऐसा नहीं क्लास 1, 2 में कुछ करा है, 3, 4 में कुछ किया आपने. Class you have to enter in Roman form. Enter alphabets in section. Enter roll number here. Date of birth. In date of birth you have to follow the format of dd/mm/yyyy. So this is the dummy data which we have entered. Save this data. Now let's try to upload this data. Click on choose file. Open personal profile sheet. Click on upload button. Yes. Here after choose the file, आपने फाइल चूज किया, लोकेशन से पिक किया, उसको अपलोड किया, और उस अपलोड के बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हमारा डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया था, इफ देयर इज एनी एरर इन दैट, तो किस तरह से उन्हीं सेम 3 बटन्स के नीचे, टैब्स के नीचे आएगा, आपके पास एक रेड कलर से मैसेज आएगा कि आपका डेटा अपलोड नहीं हुआ है और एरर फाइल, उसमें एरर फाइल आप डाउनलोड करिए, और एरर फाइल में जो एरर्स है वो विद रो, कि किस कॉलम में, किस रो में, विद डिस्क्रिप्शन कि क्या मिस्टेक है, क्या गलती की हुई है आपने उस एंट्री में. मीन्स अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं और 4 बच्चों के आपने एंट्री गलती करी है, चाहे उसका डुप्लीकेट एंट्री हुई है, चाहे एडमिशन नंबर उसका रिपीटेड है किसी बच्चे का, वो आपको पर्टिकुलरली उस रो का नंबर बताए कि सच एंड सच रो ये मिस्टेक आपने करी है, तो आपको फिल्ट्रेशन डायरेक्टली करा हुआ है और आप डायरेक्टली उन चारों को करेक्शन करके यू कैन डायरेक्टली देन अपलोड द फाइल. Errors have been detected in Excel sheet. Download the error log file and rectify your sheet accordingly. Click on this download button. Open this sheet. So these are error details.
In row number 10, school code is not matching with the selected school. If some is, go to the personal profile sheet. Change the school code. Correct student admission number. Correct the date of birth here. Save the changes that you have made. Now try to re-upload the personal profile sheet. उस एरर फाइल में जो जहां जहां जिस रो में आपको वो मिस्टेक दिखाई गई थी, आपने अपनी ओरिजिनल पर्सनल फाइल में वो करेक्शंस किए और उसको आप फिर दोबारा रीलोड करेंगे। चूज फाइल में जाएंगे, उस लोकेशन से उसको पिक करेंगे, देन अपलोड करेंगे आफ्टर द करेक्शंस। Click on choose file. Select personal profile sheet. Open. Click on upload button. One message has come. Thank you for uploading the data. Your request has been submitted. So this is how you upload the student's data. And if error comes, you rectify this way. Thank you. हमने स्टूडेंट का डेटा अपलोड किया और अपलोड करने में हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई गलती हमारे डेटा में होती है तो वो हम खुद उसका आपके पास एक प्रॉपर कॉलम वाइज आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस रो में इस कॉलम में आपने ये डिटेल्स गलत भरी हैं, वो हम उसको रिजॉल्व करके हमारा डेटा हो गया। नाउ हमारा जो डैशबोर्ड है, स्कूल डैशबोर्ड है हमारा, वो पूरी तरह से तैयार है। उसमें सिर्फ दो चीजें रह गई हैं। वन, कि हमें जो स्टूडेंट का आईडी QR आईडी जनरेट करना है, जो कि हमें टेस्ट लेते वक्त स्कैन करने के लिए चाहिए होगा। ये क्योंकि ये एप्लीकेशन स्मार्ट एप्लीकेशन है, हमें इस एप्लीकेशन जब हम इस एप्लीकेशन से टेस्ट लेंगे, हमारा मैनुअल वर्क 0 और 1% है। सिर्फ मैनुअल वर्क इतना ही है कि आपको उस एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है, अदरवाइज आपका कोई मैनुअल वर्क नहीं है। आपको स्टूडेंट का नाम नहीं सेलेक्ट करना, उसका क्लास नहीं ढूंढना, उसका सेक्शन नहीं ढूंढना, आपने टेस्ट करना है, कार्ड को स्कैन कर देना है। जैसे आप कार्ड स्कैन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट के डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे, आपने सेव कर देना है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो स्टेप्स हमारे रह गए हैं टू गेट रेडी फॉर द असेसमेंट। वन इज generate student ID and second assigning the assessor with the principal portal. So let's go first how to generate student ID. कि स्टूडेंट की आईडी हमें जनरेट कैसे करनी है। स्टूडेंट डेटा अपलोड हो चुका है, इट जस्ट अब हमें उसका प्रिंट आउट लेके आईडीज का बच्चों को देना है। Now to download students fitness ID cards, first of all you have to log in. Enter principal HM user ID and password. Here I would like to tell you, मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा बताना चाहती हूँ। स्कूल रजिस्ट्रेशन इज अ लाइफ टाइम काम। आपने अपने स्कूल को एक ही बार रजिस्टर्ड करना है, हर साल नहीं करना। उसमें एक बार रजिस्टर्ड कर दिया, इट्स डन। स्टूडेंट डेटा अपलोड आपने सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद आपको उसे प्रमोट और ट्रांसफर करना है, वो काम भी आपका बार बार का काम नहीं है। स्टूडेंट आईडी कार्ड जनरेट करना, वो भी आपको एक बार करना है। और जो बच्चे मिड सेशन एडमिशन लेते हैं या जो न्यू एडमिशंस आपके यहाँ होंगे, बस आपको उन बच्चों का डेटा अपडेट करना है और बस उन बच्चों का QR आईडी कार्ड आपको जनरेट करना है। अदरवाइज दीज ऑल वर्क आर द वन टाइम वर्क बट नीड लॉट ऑफ अटेंशन। थोड़ा सा अटेंशन के साथ करने हैं आपको, और ये रोज का काम नहीं है। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि किसी को ये ना लग रहा हो कि अरे इतना सारा टेक्निकल काम है, ये इनिशियल फेज है। उसके बाद तो एक बार आपके ऐप में डेटा आ गया, देन यू आर फ्री। आपको सिर्फ साल में 2 बार असेसमेंट्स करने हैं, यू विल हैव अ ब्यूटीफुल डिटेल्ड रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ चाइल्ड। Enter CAPTCHA. Click on sign in button. Now here you have to go on student. Click on student login password. Select. यहाँ पर जब QR आईडी कार्ड जनरेट कर रहे हैं बच्चे का, तो स्टूडेंट में ही दो टैब्स थे। फर्स्ट था स्टूडेंट डेटा अपलोड, जो हम कर चुके हैं। सेकंड टैब पे हमें क्लिक करना है, जो है QR लॉगिन आईडी पासवर्ड। उस पर जब हमने क्लिक किया
ये इंटरफेस ओपन होकर के आया है। आफ्टर अपलोडिंग द डेटा, जब हम स्टूडेंट में जाके स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड पर जाते हैं तो ये इंटरफेस ओपन हो रहा है। Select the school. Select the class of which you want to download the fitness ID card. Click on view button. So these are the students in आपने स्कूल सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट किया, उसके बाद आप व्यू में गए, यहाँ पर दिख रहा है शो 10 एंट्रीज, इट कैन बी 25 आल्सो, इट कैन बी 50 आल्सो, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे ये पूरा आपके पास पूरी क्लास की लिस्ट खुल के आ जाएगी जो क्लास आपने सेलेक्ट करी है। और जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जो नीचे आप देख रहे हैं प्रिंट फिटनेस आईडी कार्ड, इट टर्न टू द ऑरेंज, और आप अपने स्टूडेंट्स का जो आईडी कार्ड है वो प्रिंट कर सकते हैं। class first A. Click on this checkbox. Click on this print fitness ID cards. These are the ID cards. Click on this print button to print fitness ID cards. Thank you. Now to download students fitness ID cards, first of all you have to log in. Thank you. हमने स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड जनरेट कर लिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें आप फोटोग्राफ, आप ऊपर से फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। उस QR आईडी कोड को आपको स्कैन करना है आफ्टर टेकिंग टेस्ट। एंड सेकेंडली, अगर आप पर्टिकुलरली किसी बच्चे का आईडी कार्ड मिस हो जाता है तो उसी व्यू में जाकर के जब आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, व्यू पे जाएंगे और वो क्लास पूरी रिफ्लेक्ट होगी, तो आप एक बच्चा, दो बच्चा सेलेक्ट करके वो तब भी उसका आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हाउ टू मैनेज एसेसर। हमारा डेटा रेडी है, हमने अपने बच्चों को उनके आईडी कार्ड्स दे दिए हैं, हमने हमारा टीचर साइन अप कर चुका है, हमारे टीचर के फोन में एप्लीकेशन रेडी है। अब बस उस फोन वाली एप्लीकेशन को और प्रिंसिपल पोर्टल को, स्कूल डैशबोर्ड को मर्ज करना है, सो दैट जो स्कूल पोर्टल पे डेटा है वो डेटा हमारी एप्लीकेशन में, हमारे मोबाइल में रिफ्लेक्ट हो सके। तो उसके लिए हमें एसेसर को मर्ज करना है, मैनेज करना है उससे। तो उसको हम कैसे करेंगे, लेट्स सी इन दिस वीडियो। So now to manage SSRs on Principal HM page. यहाँ पे जो ये थर्ड टैब है, थर्ड टैब मैनेज एसेसर, दिस थर्ड टैब इज फॉर द मैनेजिंग एसेसर। और यहाँ पर हमें आपके ट्रेनर आईडी नंबर की, जो कि हमने आपको साइन अप के वक्त कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कीप योर ट्रेनर आईडी हैंडी विद यू। आपको वो अपना ट्रेनर आईडी यहाँ पर एंटर करना है, सर्च करना है न्यू एसेसर में। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वो सर्च करना है, फिर डिटेल आ जाएगी, एंड देन लेट्स गो। You have to click on manage assessor. Here you have to enter trainer ID. Click on search button. Now this is the trainer ID. This is the name of the trainer, mail ID of the trainer, and contact number of the trainer. After आपने अपना जो आपको साइन अप के वक्त आपको ट्रेनर आईडी आई थी, वो आपने ट्रेनर आईडी यहाँ टाइप की, उसके बाद सर्च में गए, आपका एसेसर आईडी, आपका नेम, ईमेल, फोन नंबर, और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगा। अब आपको यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल अपने एक्टिव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड विद द स्कूल, मतलब उन्होंने आपको एक्टिव किया, और एक्टिव करने के बाद आपकी फंक्शनिंग उनके स्कूल के साथ उन्होंने आपको रजिस्टर्ड कर दिया कि अब आप उनके स्कूल का डेटा आपकी एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट होगा और आप अपनी एप्लीकेशन से स्टूडेंट्स को असेसमेंट्स कर सकते हैं। After that, you have to click on activate button. Are you sure you want to activate the selected assessor with your school? Click on yes button. Now click on registered with school. So now you can see. अब आप देख रहे हैं दिस एक्टिव टर्न टू द डीएक्टिव। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप स्विच ओवर करें तो भी आप अपने जाने से पहले आप अपने स्कूल से डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो उस स्कूल का डेटा अब आपके मोबाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्कूल का डेटा स्कूल के पास ही रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है कोच या टीचर के साथ। और आप जो है एक्टिव बटन से आप अपने आप को
दो स्कूल्स में भी एक्टिवेट करा सकते हैं. तो दिस एक्टिव एंड डीएक्टिव बटन इज टू स्टार्ट और टू डीएक्टिवेट, मीन्स अब आपका उस स्कूल का डेटा आपके साथ नहीं रहेगा. तो राइट नाउ वी आर एक्टिव and we can do the assessment of this school. The trainer is activated with this school and he has also received user ID and password for Khelo India Fitness Assessment mobile application on the mail ID which was entered while doing sign up on Khelo India mobile application. This is the mail which was received. The moment you are registered with the school, you are assigned with the school, आपके पास एक ईमेल आएगा, आपको एक मेल आएगा कि आप जो है उस स्कूल के साथ सो एंड सो स्कूल के साथ मैप कर दिए गए हैं और आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये है और उस यूजर नेम और पासवर्ड से आप उस एप्लीकेशन को लॉग इन करेंगे और उस स्कूल के बच्चों का असेसमेंट आप ले पाएंगे. ये कंफर्मेशन मेल है कि आप उस स्कूल के साथ मैप्ड हो चुके हैं. This is the user ID and password. Using this user ID and password, he can log in the mobile application and can start fitness assessment. Thank you. Now all 4 steps are done and we assume कि हमने assessment कर लिए. हमारे initial चारों चीजें हमने कर ली और हम ये मानते हैं कि हमने first term, second term का दोनों का assessment करने के बाद, because I'm taking IT session, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने मान लिया Hello. Yeah, madam, audible it is. Yeah. Audible, please Okay. continue. Thank you. We consider कि we have completed first and second term both the assessments. अब assessments करने के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि data upload is not an every term or every time exercise. आपको एक बार करना है, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, promote करना है और transfer students करने हैं. मतलब जो 1 का स्टूडेंट 2 में जाएगा उसको प्रमोट करना है, जो +2 के बच्चे पास आउट होंगे उनको ट्रांसफर करना है, जो बच्चे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं स्कूल के साथ हमें उनको ट्रांसफर करना है. दिस इज व्हाट द मिनिमाइज एक्सरसाइज वी हैव टू डू आफ्टर द कंप्लीटिंग द सेशन बिफोर स्टार्टिंग द असेसमेंट्स फॉर द न्यू सेशन. दिस स्मॉल एक्सरसाइज वी हैव टू डू. To promote students, click on student login password, select school, select class, click here to promote. यहाँ पर हमने पिछली बार हम डायरेक्ट व्यू में गए थे, ठीक है, जब आईडी कार्ड जनरेट करते हैं. अभी हमने क्या किया, हम उसके नेक्स्ट स्टेप में गए, प्रमोट में गए और जैसे हम प्रमोट पे हमने क्लिक किया हमने देखा ये स्टेटस खुल करके आएगा कि आपके पास These are current classes. कि आपके पास 1A में इतने स्टूडेंट हैं और प्रमोट होके 2A में जाएंगे, 1B विल गो टू 2B और नंबर टोटल स्ट्रेंथ भी दिखाई देगा आपको कि आपके पास 1A में इतने स्टूडेंट हैं, करंटली इतने प्रमोट होके इस क्लास में जा रहे हैं. इट विल शो यू हियर कंप्लीटली. ये डमी डेटा इसलिए 1-1 दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा 1 to 12 आपको दिखाई देगा. These are after promotion classes. Click on this promote button. Click on I agree. Now to delete students record, click on select school, select class, click on view button, select the student. अब आता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कैसे करना है. जैसे मैंने बताया था +2 का बच्चा पास आउट हो रहा है, कोई बच्चा आपका स्विच ओवर कर रहा है, स्कूल चेंज कर रहा है. हमने पर्टिकुलरली क्लास सेलेक्ट किया, उसको व्यू में जाएंगे हम उसको और फिर उसके बाद जो जितनी डिटेल पूरी क्लास की लिस्ट यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास हमने डमी एंट्री डाली है तो क्लास 2A में हमारा एक ही बच्चा है. अदरवाइज क्या होगा, पूरी 2A की पूरी लिस्ट ओपन होके आएगी आपके पास जितने भी बच्चे हैं 25, 30 और उसमें से आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करके उस पर्टिकुलर बच्चे को आपको सेलेक्ट करना है. Student, click on edit to transfer or to delete student. आपने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को
चेक बॉक्स पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और फिर आप जो उसके साथ एक्शन में एडिट आया, एडिट के पास उसकी डिटेल आपको वो बता रहा है कि ये डिटेल है इस स्टूडेंट्स की, आई यू श्योर दैट ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये डीओबी, ये क्लास का बच्चा है, आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, यू विल क्लिक ऑन द ट्रांसफर एंड चाइल्ड विल प्लस 2 का बच्चा, मतलब वो बच्चा ऑटोमेटिकली आपके पास से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि उस बच्चे के पास एक खेलो इंडिया आईडी है, तो दैट आईडी विल रिमेन सेम वेयरएवर द चाइल्ड विल गो, और वो अपने आप को एक्सेस कर सकता है अपनी फिटनेस। Click on transfer. Click on yes button. Thank you. Now these are the technical aspects which you have to do before starting the assessments. आपको अपने स्कूल को रजिस्टर करना है, अपने एसेसर को रजिस्टर करना है, अपने एसेसर को मैप करना है स्कूल के साथ, आपको डेटा अपलोड करना है, आपको डेटा अपलोडिंग में एरर रेक्टिफिकेशंस आने चाहिए। आपके स्टूडेंट के पास एक आईडी जनरेट करके आपने दे दिया है, आपको अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना आता है। This is what we all have learned in this session, and now we are ready for the assessments. For the assessment, I request Himanshu sir to please, Himanshu sir, can you take? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, good evening, everyone. खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम फॉर स्कूल्स में बैटरी ऑफ टेस्ट के अंतर्गत 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 to 8 इयर्स जो कि है क्लास 1st, 2nd और 3rd के लिए, देन 9 to 18 प्लस इयर्स जो कि है क्लास 4th से लेकर 12 तक के लिए। तो हमारे पास 5 to 8 इयर्स यानी क्लास 1 to 3 में 3 बैटरी ऑफ टेस्ट हैं, जो पहला है BMI, दूसरा है स्टैटिक बैलेंस यानी फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, तीसरा है कोऑर्डिनेशन टेस्ट यानी प्लेट टैपिंग टेस्ट, और जो क्लास 4 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए 6 फिटनेस टेस्ट है, जिसमें पहला BMI, सेकंड है स्पीड 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, एंड्योरेंस टेस्ट 600 मीटर रन ऑब्लिक वॉक, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच बॉक्स टेस्ट, कोर स्ट्रेंथ के लिए पार्शियल कर्ल अप फॉर 30 सेकंड, एंड मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स। तो हम आगे देखते हैं हमारे एज ग्रुप क्लास 1st, 2nd, 3rd के स्टूडेंट्स के लिए बैटरी ऑफ टेस्ट, जिसमें पहला है BMI। तो BMI रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है आपका डिजिटल स्टेडियोमीटर एंड डिजिटल वेइंग मशीन, और इसके साथ और भी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्यों BMI निकालते हैं, उसका क्या फायदा है और किस तरह से उसे एक्यूरेटली कैलकुलेट किया सकता है। To calculate the body mass index, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test. इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें खेलो इंडिया फिटनेस एसेसर ऐप में जाना है। उसे ओपन करने के बाद टेक टेस्ट ऑप्शन आएगा। टेक टेस्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद चूंकि हमें BMI निकालना है, इसलिए From various test options, select BMI. वेरियस टेस्ट ऑप्शन देखेंगे टेक टेस्ट में जाने के बाद, जहां पर हमें BMI पे क्लिक करना है। The app is now ready to calculate the body mass index. Body mass index or BMI. जैसे ही हम BMI पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक स्क्रीन खुल जाएगा, जिससे हमारा मोबाइल तैयार है रीडिंग लेने के लिए। एक्चुअल में BMI जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स एंड फैट्स इन बॉडी के लिए हम लोग उसे करते हैं, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। Used to measure the body composition, which refers primarily to the distribution of muscles and fat in the body. Body size such as height, length and girth are also grouped under this component. BMI is calculated by taking a person. BMI निकालने का जो फॉर्मूला है कि BMI के लिए हमें हाइट और वेट चाहिए होता है, और उसका फॉर्मूला BMI जो है वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से। लेकिन हमें इस एप्लीकेशन में स्मार्ट ऐप है, इसमें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल हाइट और वेट कैलकुलेट करना है। ये स्मार्ट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस बच्चे का BMI कन्वर्ट कर देगा। Weight and dividing by their height squared. To measure the height correctly, a stereometer is required. हाइट को करेक्टली मेजर करने के लिए हमें स्टेडियोमीटर की आवश्यकता है, जिससे कि हम एक्यूरेट उसकी हाइट की रीडिंग ले सकें।
If stadiometer is not there, it could be done against a wall as well with measuring tape pasted on it. यदि हमारे पास डिजिटल स्टूडियोमीटर नहीं है तो हम एक मीटर टेप का यूज कर सकते हैं, उसे वॉल के अगेंस्ट पेस्ट करके और वहां सब्जेक्ट को खड़े करके उनके हाइट की रीडिंग सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नोट कर सकते हैं. Should be done on a hard flat surface. ये इसके लिए हाइट वेट करने के लिए, हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें नीचे हार्ड सरफेस चाहिए ताकि कोई ऐसी हाइट में ऊपर उसके हाइट में कोई फर्क ना आए. इसलिए हमें इसमें फ्लैट सरफेस और नॉन स्लिपरी सरफेस होनी चाहिए. इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. और कोई भी जो शूज वगैरह है वो उतारना चाहिए. शूज एंड हैवी क्लोथिंग रिमूव करना चाहिए जिससे कि हाइट में मिसमैच ना आए. Clothing, hair ornaments and unbraid hair that could interfere with them. जो भी लड़कियों गर्ल्स के ऑर्नामेंट्स होते हैं, हेड गियर होता है या उनके हेयर बैंड होते हैं, वो सब हमें हटाने के बाद ही हाइट कैलकुलेट करनी चाहिए ताकि एक्यूरेट हाइट मिल सके. Measurement. Participants should stand with feet flat together and back against the wall. जब भी हम स्टूडेंट्स की हाइट कैलकुलेट करें उन्हें बताएं कि वो बिल्कुल सीधा खड़े रहें. जो फीट है वो कंधे के लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और आंखें बिल्कुल सामने, बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए. Legs should be straight, arms at side and shoulders level. The शोल्डर्स बिल्कुल लेवल में होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए ताकि हाइट एक्यूरेटली मेजर की जा सके. participant should look straight ahead and the line of sight should be parallel to. जो स्टूडेंट बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए, उसकी लाइन ऑफ साइट जो है पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए. The floor. The height should be recorded in centimeter. हाइट सेंटीमीटर में रिकॉर्ड की जा सकती है और मिलीमीटर के 0.1 डेसिमल पॉइंट तक, जैसा कि हम आगे स्क्रीन पे. The reading of the height should be typed in at the designated place. जैसे ही ऐप में हमें जहां पे स्थान दिया हुआ है हाइट सेंटीमीटर में लिखने के लिए, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 151 लिखा है, आप 0.1 डेसिमल तक भी इस रीडिंग को कैलकुलेट करके नोट कर सकते हैं. On the screen. To measure the weight accurately, a digital scale should be used. वेट को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए डिजिटल स्केल या डिजिटल वेइंग मशीन बहुत आवश्यक है और ये भी 0.1 डेसिमल पॉइंट तक इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किलोग्राम और ग्राम में. The scale should be placed on firm flooring rather than a carpeted floor. जो हमारा वेइंग मशीन है वो कारपेटेड फ्लोर की जगह बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखा होना चाहिए ताकि एक्यूरेट रीडिंग मिल सके. The participant should remove shoes and heavy clothing. वेट कैलकुलेट करते समय हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पार्टिसिपेंट ने जो शूज पहने हैं या हैवी क्लोथिंग या जैकेट है विंटर के समय, उसे हम जरूर हटा दें ताकि सही हमें डेटा मिल सके. The participant should stand with both feet in the center of the scale. The weight should be recorded in kilogram and gram. जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि वेट जो है हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर कर सकते हैं. जैसे इसमें 44.8 यानी 44 किलोग्राम 800 ग्राम. To the nearest decimal. The reading of the weight should be typed in at the designated place on the screen. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपके ऐप के स्क्रीन पे, जैसे आपने हाइट एंटर की थी उसी के साइड में बिल्कुल वेट का कॉलम होगा जहां पर आप वेट एंटर कर देंगे और ये जो स्मार्ट ऐप है ये ऑटोमेटिकली उसका BMI कैलकुलेट कर लेगा. Once both the readings are entered in the app, scan the ID card of the participant by tapping. जैसे ही हम दोनों रीडिंग एंटर कर देते हैं उसके बाद हम स्कैन ऑप्शन में जाकर बच्चे के आईडी कार्ड में जो QR कोड है उसको स्कैन करेंगे, जिससे उसका नाम, उसके एज, वो सब हमें स्क्रीन पे दिखने लगेगी और हम डेटा सेव कर देंगे. इस तरह से टेस्ट On the scan option was the age and gender of the participant. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ही हमने बच्चे का QR कोड स्कैन किया, उसका नाम, उसकी आईडी, उसका क्लास, उसका एज, जेंडर, सब कुछ हमें स्क्रीन पे दिख रहा है. हमें कोई ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल सेव पे क्लिक कर देना है और ये डेटा उस नाम से Save the record by tapping on the save option. This completes the process to calculate the body mass index or BMI.
इस तरह से हमारा पहला बैटरी ऑफ टेस्ट BMI कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे टेस्ट पे जाएंगे जो कि है प्लेट टैपिंग टेस्ट, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है। इसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी हमें इस ऐप की जरूरत पड़ेगी। दो चीज हमें यहाँ बना लेनी है, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दो येलो डिस्क जो कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर की होनी चाहिए और एक रेक्टेंगल जो कि 30 बाय 20 सेंटीमीटर का है। आगे वीडियो में हम पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। To conduct the plate tapping test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. सेम प्रीवियस जैसे हम लोग गए थे, खेलो इंडिया फिटनेस असेसर ऐप में जाने के बाद टेक टेस्ट ऑप्शन में जाना है, जहां हमारे स्क्रीन पे वेरियस ऑप्शन मिलेंगे। उन वेरियस ऑप्शंस पे हमें कोऑर्डिनेशन के अंदर जाके प्लेट टैपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। From various test options, select coordination and then tap on the plate tapping option. The app कोऑर्डिनेशन के अंदर जाने के बाद हम प्लेट टैपिंग टेस्ट कंडक्ट करना है, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। app is now ready for the plate tapping test. The plate tapping test measures upper body reaction time and hand-eye quickness and coordination. It also प्लेट टैपिंग टेस्ट बच्चों के अपर बॉडी मूवमेंट और उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करने का एक माध्यम है। साथ ही स्पीड और उनके लिम्ब का स्पीड और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। assesses the speed and the coordination of limb movement. One table, two yellow discs of 20 centimeter diameter. हमें इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक टेबल की आवश्यकता होगी, जो यदि एडजस्टेबल रहे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हम बच्चों के हाइट के अनुरूप उसे एडजस्ट कर सकें। दो येलो डिस्क चाहिए जो 20 सेंटीमीटर डायमीटर की होनी चाहिए। एक ब्लू रेक्टेंगल जो कि 30 बाय 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आप इसमें प्लेन पेपर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई उसमें करने की जरूरत नहीं। प्लेन पेपर, येलो पेपर और ब्लू पेपर से आप इसे स्वयं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। Similar sheet of 30 by 20 centimeter size are needed to perform this test. The table height should be adjusted so that the subject is standing comfortably in front of the discs. The two yellow discs are placed with their centers. इस प्रकार से होनी चाहिए कि बच्चे इसमें बिल्कुल सही एक स्थान पे खड़े हो सके, ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना हो इस टेस्ट करने के लिए। और जो येलो डिस्क जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनके एपिक सेंटर के बीच में रेक्टेंगल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर अपार्ट, और उनका नॉन प्रेफरेबल हैंड उस ब्लू डिस्क पे होना चाहिए रेक्टेंगल पे। 60 centimeter apart on the table. The rectangle is placed equidistant from both the discs. The participant is encouraged to stand in a balanced position. हमें पार्टिसिपेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो बैलेंस पोस्चर में खड़ा रहे, ताकि उसकी रीडिंग अच्छे से आ सके और उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक अच्छे तरीके से मेजर हो सके। Posture. The non-preferred hand is placed on the rectangle. The subject moves the preferred hand back and forth between the discs over the hand in the middle as quickly as possible. जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, बच्चे का नॉन प्रेफर्ड हैंड है जो वो कम इस्तेमाल करता है, उसे ब्लू रेक्टेंगल पे रखना है और प्रेफर हैंड से दोनों डिस्क को टैप करना है, लेफ्ट और राइट डिस्क दोनों को। जब ये दोनों डिस्क टैप हो जाएगी वो एक साइकिल होगा। इस तरह से हमें 25 साइकिल्स कंप्लीट करने तक टाइमिंग को नोट करना है ऐप में। आगे देखते हैं। Once the participant starts this test, the start timer option. जैसे ही पार्टिसिपेंट तैयार हो जाता है और स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है, तुरंत हम एप्लीकेशन में स्टार्ट टाइमर बटन को दबा देंगे और पार्टिसिपेंट को टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कहेंगे। Should be tapped on the screen. This action is repeated for 25 full cycles. ये जो एक्शन है, जो टैपिंग दोनों डिस्क को टैप करने पर एक साइकिल होता है, ऐसे हमें 25 साइकिल्स यानी 50 टैप्स तक काउंट करना है। और जितना टाइम वो इसको 25 साइकिल्स पूरा करने के लिए ले रहा है, उसे हम ऐप में जब स्टॉप करेंगे तो वो टाइमिंग हमारे सामने आ जाएगा। The total time taken to complete 25 full cycles is recorded. As the participant completes 25 full cycles of tapping, stop timer option should be tapped. जैसे ही हमारे सब्जेक्ट का या छात्र का 25 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही हम
स्क्रीन पे स्टॉप टाइमर बटन दबा देंगे और हमारे सामने स्क्रीन में उसका टाइम टेकन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। On the screen, the clock on the screen shows the time taken by the participant to complete 25 full cycles of plate tapping. To record the data, first scan the ID card of the student and then tap on the save. जैसे ही हमने प्रीवियस BMI में देखा था, उसी प्रकार इसमें भी जैसे ही हमारे पास डेटा आता है उसके बाद हमें स्कैन ऑप्शन में जाना है। जैसे ही हम स्कैन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, बच्चे का ID कार्ड जो कि इसमें QR कोड लगा हुआ है उसमें हम स्कैन करेंगे तो बच्चे का सारा डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर सामने दिखने लगेगा। Tap on the save option. This completes the plate tapping test. इस तरह से हमारा ये प्लेट टैपिंग टेस्ट कंप्लीट होता है और अब हम अंतिम टेस्ट जो कि है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट उस पर जाते हैं कि फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक्चुअली क्या टेस्ट है। प्लीज प्ले द वीडियो। To conduct the Flamingo balance test, first open the Khelo India Fitness Assessor app. Once the app is on, select the Take Test option. सेम एज इट इज, जैसे ही हमें ये टेस्ट कंडक्ट करना है, खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे, एसएसआर ऐप में जाएंगे, जहां पर हमें स्क्रीन में टेक टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, हमें उस पर क्लिक करना है। From various test options, select balance and then फिर हमें स्क्रीन पे वेरियस टेस्ट ऑप्शन दिखेंगे जिसमें हमें बैलेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद उसके अंदर आएगा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जिस पे हमें क्लिक करना है। tap on the Flamingo balance test option. The app is now ready for the Flamingo balance test. The Flamingo balance test measures the ability to balance successfully on a single leg. Test assesses फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बच्चे के एक पैर पर खड़े होने की क्षमता को नापने का एक टेस्ट है कि वो एक पैर पर कितनी देर तक एक स्थान पर खड़ा रह सकता है। the strength of the leg, pelvic and trunk muscles as well as static balance. While balancing on the preferred leg, the free फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट बच्चे के जो लेग है, पेल्विक मसल्स है, ट्रंक मसल्स है और उनके स्टैटिक बैलेंस को मेजर करने के लिए है, जिसमें हमें उस बच्चे के प्रेफर्ड लेग पर उसे खड़ा करना है, जैसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। leg is fixed at the knee and the foot of this leg held close to the buttocks. जो उसका प्रेफर्ड लेग है उस पे वो उसे खड़े करना है और जो दूसरा लेग है वो बटक्स के साथ लगा होना चाहिए, एक फ्लेमिंगो की तरह, जैसा आपको आगे स्क्रीन पे दिखेगा। Standing just like a flamingo. The test should be done on a non-slippery. इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमें नॉन स्लिपरी सरफेस चाहिए और हम एक बीम या ब्रिक का भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। Even surface by standing on a beam or a brick. The athlete keeps balance by holding the instructor's hand. If हम बच्चे को इस टेस्ट को शुरू करने के समय उन्हें सहारा देकर के उसे खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब टेस्ट चालू हो जाए उसके बाद हमें ये नहीं करना है। हमें उसको शुरू में खड़े होने से के समय हम उसको एक हाथ से सहारा देकर खड़ा भी कर सकते हैं। required, the timer is started as the instructor lets go. जैसे ही बच्चा तैयार हो जाता है, हम एप्लीकेशन में स्टार्ट टाइमर का ऑप्शन दबा देंगे और हमारी टाइमिंग कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। To start the timer on the app, start timer should be tapped. जैसे स्क्रीन पे हमें स्टार्ट टाइमर चालू करना है तो हमें उसे टैप करना होगा और टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। The timer is stopped each time the athlete loses balance. जैसे एथलीट अपना बैलेंस लूज करता है या अनकंफर्टेबल होता है या पैर नीचे रख देता है, हमें तुरंत इस टाइमर को स्टॉप कर देना है। Either by falling off the beam or letting जैसे या तो बच्चा गिर रहा है बीम से या डिसबैलेंस हो रहा है, उसी समय हम स्टॉप टाइमर दबा देंगे। इससे हमारा काउंट जो है स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जितने बार हम स्टॉप टाइमर दबाते जाएंगे उतनी बार हमारा काउंट जो है स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। go the foot behind being held. To do that, pause timer should be tapped on the app each time the participant loses balance. Start the timer again when the अब जब पार्टिसिपेंट दोबारा तैयार हो जाए इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, हमें दोबारा स्टार्ट टाइमर ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरह से
जब तक 60 सेकंड Participant is in the position. If there are more than 15 falls in first 30 seconds, the test is terminated. यदि इस एप्लीकेशन में यदि 30 सेकंड के अंदर बच्चे का 15 बार फॉल हो जाता है या डिसबैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये टेस्ट टर्मिनेटेड हो जाएगा और ये टेस्ट को हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 60 सेकंड वेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है 30 सेकंड के अंदर यदि 15 बार फॉल हो जाता है तो टेस्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसका 30 सेकंड से कम टाइमिंग 20 सेकंड हुआ है और 15 बार फॉल हो गया है, तो सामने ही लिखा आ रहा है डिस्क्वालीफाइड, जैसा आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। The number of falls or loss of balance in 60 seconds of balancing is counted and recorded. The timer automatically stops at the 60 seconds. हमें बच्चे के कितने बार डिसबैलेंस हुआ है उतने बार स्टॉप टाइमर करना है और 60 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट ऐप कैलकुलेट कर देगा नंबर ऑफ काउंट्स कि कितनी बार इस बच्चे का फॉल हुआ है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 60 सेकंड या 1 मिनट में इस बच्चे का 3 बार फॉल हुआ है। Mark. The ID card of the participant is scanned. फिर वही हमें जैसे पहले प्रीवियस ऐप में देखा, बाकी जैसे बच्चे का टेस्ट कंप्लीट होता है हमें स्कैन ऑप्शन में जाना है। स्कैन ऑप्शन में जाने के बाद बच्चे का आईडी कार्ड में लगा By tapping on the scan option. Once the participant details are updated, the data is saved by tapping on the save option. This completes the Flamingo balance test. इस तरह से हमने क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तीनों टेस्ट अभी देख लिए हैं। बीएमआई, दूसरा है आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट और तीसरा है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Neeraj. Thank you so much, Himanshu sir. तो ये जो है संजीव sir. So today we have actually finished up to class 1, 2 and 3. तो ये जो है आज हमने देखा है कि खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से स्कूल को रजिस्टर करना है और फिर उसको बच्चों का डेटा को कैसे अपलोड करना है, पीई टीचर अपना डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है और असेसमेंट कर सकते हैं क्लास 1 to 3। कल हम देखेंगे क्लास 4 to 12 के लिए। फिर हम देखेंगे रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है और पेरेंट ऐप को कैसे यूज करना है और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन रोड मैप। तो ये थोड़ा सा काफी 5 घंटे का कोर्स है जिसको हमने 1.5 घंटे और 1.5 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्टन करके। सो वी हैव ओवरशॉट द टाइम बट या सो दैट इज व्हाट इट इज। I believe, sir, and I accept that time is requirement is more for this. Only one question I want to like. You have told that in school they can register. Suppose sometimes, especially coaches, they want to register individually. That is possible through this app or? Not right now, sir. लेकिन जो हमारे जो स्कूल फिटनेस जो पेरेंट ऐप है कल देखेंगे उसमें वो अपने बच्चों को रजिस्टर करा के उसमें डेटा डालेंगे तो उससे भी वो रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। So not through the assessor app, but through the parent app, they can actually register for their. Yeah. So I'm just giving a workaround. मेरा ये वाला part को mute कर दीजिएगा। Okay. Thank you, sir. It's anyhow, it's a good session, sir. Time is. Yeah. So we'll be continuing tomorrow. तो ये जितना भी questions है वो कल हम answer करेंगे। Participants, this session will continue tomorrow also. So it's a winding up time. Yeah. So it's a wonderful session, sir. This session was successful because of all panelists, resource persons in this. And on behalf of Ministry Youth Affairs and Sports, Hello India, and LNCP, as well as on behalf of our respected principals, sir, I thank you for all the panelists, those who have given their expert opinion on this app. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. Panelists, for participants, there is an important information for them. Today, 5 o'clock, as usual, the sessions will be there where international experts give their opinions. Today, we have a special expert, Professor Dr. Gudrun Doll Tepper, a German Olympian Sports Confederation academic chairperson. Madam is going to present a topic on physical education and sports in Germany,
historical and as well as a current one. So I request, Madam is also a vice president. So I request all the participants, please involve in this session also and get a lot of information from a German nation also. Correctly. Yes. For the information of the participants, please. Today it's the most high profile speaker. We are very fortunate to have the vice president of the German Olympic Sports Confederation since 2007, chairperson of the German Olympic Academy, Wildume, 2017. She's the chairperson of German Sport Olympia Museum, member of the IOC Commission on Women in Sport, and 2015 and member of the IOC Commission on Olympic Education. I think you will know this is our most topmost, and with great difficulty, Madam has agreed to be as one of the guest speaker. So I request all those who could kindly participate for this. Thank you. Thank you, Thank Madam. you so much. Namaskar. Himanshu sir, Yes, sir. thank you very much, sir. Very valuable Thank informations. And Thank you, sir. Neeraj Singh, Madam, thank you very much for your valuable information in ये this. सारे हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं Yes, sir. पूरे टीम के बेस्ट बैट्समैन हैं सर Sir, thank you very much for your. थैंक यू सर Thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट Thank you, sir.